بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا فرعون کے بال اور ناخن بڑھ رہے ہیں؟ فرعون کی لاش کب، کیسے اور کہاں سے ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں اور کس لیے بنایا گیا؟ کیا یہ صحیح ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ اب بھی لاش ہے یا ممی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی؟ اس حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور اس ویڈیو میں آپ کو فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے ملنے کے بارے میں تمام اہم باتیں بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی انفارمیشن اور نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، سال 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، یا ان کی باقیات لاشیں کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعات کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا ایک فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی میں سے رستہ مل گیا تھا۔ مگر اس کے بعد فرعون کا کیا حشر ہوا تھا، اس کے بارے میں کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، مگر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت عجیب بات لکھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ یونس آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: سو آج ہم تیری ہی لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں اور جانتے نہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ سمندر میں ڈوب کر مرنے کے بعد فرعون کی لاش کو سمندر نے باہر پھینک گرایا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی لاش کو پہچان کر باقی درباریوں کو بتایا کہ یہ فرعون کی لاش ہے۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے فرعون کی لاش کو پورے مسالے لگا کر اور بڑے احتیاط سے اس کو تابوت میں رکھ دیا۔ تابوت میں ڈالنے کے درمیان ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ فرعون کی لاش بہت سال سمندر کے اندر رہی، اس وجہ سے فرعون کی لاش کے اوپر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ درباریوں نے اس کی لاش اسی طرح رہنے دی اور اسی طرح اس کو تابوت میں بند کر کے رکھ دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین اور آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کے باقی لشکروں کی لاشیں بھی زمین میں رہ گئیں، اور ان کا واقعہ لوگوں کے دماغوں اور کتابوں میں رہ گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے۔ ان پر آنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرعون کے قصے بہت تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابر آیت بھی، جس پر اہل ایمان پر سب کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ
समझने से तासिर थे कि उस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई, कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। नाजरीन, साल 1871 में साल 1871 में मिस्र के एक शहर अलगोनिया से ताल्लुक रखने वाला एक चोर अहमद अब्दुल रसूल को चोरी के दरमियान फरौन की लाशों को देखने के लिए रसाई मिल गई। नाजरीन, अहमद अब्दुल रसूल नादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के करीब तबीसा के मकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला जहां वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था। उसी दौरान कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां जब तहकीक की गई और वहां से खुदाई की गई तो साल 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ फ़िरौन की मम्मी भी मिल गई। उसकी लाश के ऊपर उसके सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था, फ़िरौन। उन मम्मियों को माहिरीन कायरा ले गए तो जब उन मम्मियों का तहकीक किया गया तो फ़िरौन की मम्मी के ऊपर नमकियात की जमी हुई तह से मालूम हुआ कि ये फ़िरौन की लाश है, कि ये वही फ़िरौन है जिसको अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने पानी के अंदर गर्क कर दिया था। नाजरीन, ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन साइंसदान मिस्र की तरफ रुख करते थे। तहकीक के बाद इन्होंने ये साबित किया कि दूसरी मम्मियों की लाशों के बिना पर फ़िरौन की लाश के ऊपर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। तहकीक करने के बाद फ़िरौन की लाश को अजायब घर में महफूज कर लिया गया। साल 1982 में फ़िरौन की मम्मी खराब होने लगी। उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फ़िरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी तहकीक की वजह से इसकी मौत की वजह मालूम की जाए। मिस्री और फ्रांस की हुकूमत ने मिलकर फ़िरौन की मम्मी को फ्रांस ले जाने का हुक्म किया। उस सिलसिले में फ़िरौन की मम्मी को फ्रांस ले जाने के लिए उसका पासपोर्ट बनाया गया, क्योंकि फ्रांस के अंदर मम्मी ले जाने के लिए उसका पासपोर्ट बनाना ज़रूरी था। वो फ्रांस का एक कानून था। कहा जाता है कि जब फ़िरौन की मम्मी फ्रांस पहुंची तो वहां एयरपोर्ट पर फ्रांस के आला ओहदेदार वहां मौजूद थे उसका इस्तकबाल के लिए। फ़िरौन की मम्मी का इस्तकबाल एक जिंदा अजीम बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फ़िरौन की मम्मी को आला डॉक्टरों के हवाले किया गया। डॉक्टरों की टीम की सरबराही डॉक्टर फोरस ने की। माइक्रोस्कोप से मम्मी के तमाम अज़ा का मुआयना लिया गया तो उनसे मालूम हुआ कि फ़िरौन की मम्मी के अंदर समुंदर के नमकियात और असरात अभी तक भी मौजूद हैं। तो इस तहकीक से पता चला कि फ़िरौन का गोश्त हर रोज़ ताज़ा होता है और बढ़ता है और मौत की वजह भी पानी में डूबने की ही वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो तो ये बात डॉक्टर होरस के लिए एक बहुत परेशान करने वाली बात थी। उसने उस मम्मी के बारे में मजीद जानने के लिए और तहकीक की तो उसे मालूम हुआ कि उस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर उसका वाक़या तफसील से लिखा गया है। उसे इल्म था कि जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वहां का एक साइंसदान था वो तो उस डॉक्टर ने उस साइंसदान से इस मामले में मुलाकात की तो उस साइंसदान ने उसको कुरान मजीद खोलकर सूरह यूनुस की आयत 90 से लेकर 92 तक की सूरत का तर्जमा तफसील दर तफसील सुनाया।
फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और पानी से निकालकर उसकी लाश का नमूद हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और उसकी लाश को दोबारा जदीद साइंसी दौर में महफूज किया जाना, सब का इशारा एक ही जानिब था और वाज़ेह था। नाजरीन, अल्लाह ताला की ये शान, मकाम और मर्तबा है। उस अल्लाह ताला ने फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया था, फिरौन की लाश को क़यामत तक निशाने इबरत बना दिया। फिरौन वाहिद शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त तरोताज़ा है, ऐसा लगता है अभी किसी ने उसको सुलाया हो। उसके बाल और नाखून बढ़ते हैं, हालांकि उसका गोश्त भी बढ़ता है। 15 मार्च को हर साल उसकी लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं ताकि वो उसका बढ़ता हुआ गोश्त खा जाएं और फिर दोबारा से वो गोश्त आना शुरू हो जाता है। नाजरीन, फिरौन की लाश ताज़ा तरीन गोश्त वाली, बाल उसके बढ़ रहे हैं, नाखून उसके बढ़ते हैं, तो ऐसा लगता नहीं ये 3500 साल पुरानी मम्मी है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी किसी ने इसको सुलाया है। मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामुन नबिया, इनके दरमियान 2000 साल का फर्क है। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ऐ अल्लाह, तू फिरौन को इतनी मोहलत क्यों देता रहा? वो तो कहता था मैं खुदा हूँ। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये अपनी राया में अदल करता था, इसलिए इसको मैं मोहलत देता रहा। तो इसने अपनी ही जान पर जुल्म किया, तो फिर मैंने इसको पकड़ा। नाजरीन, फिरौन की लाश के हवाले से ईसाइयों और यहूदियों का ये अकीदा है कि फिरौन पानी में गर्क होकर हलाक नहीं हुआ था, कि वो उस वक्त बच गया था, बाद में खुद की ही मौत मरा। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत बैनात के बाद मुसलमानों का ये अकीदा है फिरौन को पानी में गर्क कर दिया था और क़यामत तक उसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया। तो गाइस, फिरौन की लाश अभी भी मिस्र के एक शहर कायरा में म्यूजियम के अंदर मौजूद है। तो नाजरीन, आज का वाकया आपको कैसा लगा? यकीन है कि आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके।